Good morning, students. This is History, Class 7th, Chapter 2, Kings and Kingdoms, and this is going to be our fourth class on this chapter. अब तक हमने जाना कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच नए राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें राष्ट्रकूट, पाला, चोला, चौहान शामिल थे। इन राजाओं ने खुद को बड़ी बड़ी उपाधियां दी, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, और इन्होंने ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिए, अनुदान दिया, भूमि अनुदान में दी, और ब्राह्मणों ने उस भूमि अनुदान के बदले इन राजाओं को स्वीकृति प्रदान की। इन राजाओं ने अपनी प्रसिद्धि को फैलाने के लिए मंदिरों का निर्माण किया, किलों का निर्माण किया। उपलब्धियों को भी इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा गुणगान करवाया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे ऑथर, एक ऐसे लेखक भी थे, कल्हण, जिन्होंने कश्मीर के राजाओं की अपनी प्रशस्ति में आलोचना भी की। Continue. Warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based on a specific region. At the same time, they tried to conquer other areas. One particular prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakoot and Pala dynasties fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long-drawn conflict. Historians often describe it as tripartite struggle. ये नए राजवंश आपस में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। उदाहरण के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी के जो राजवंश हैं, तीनों कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उनमें लड़ाई लड़ी गई, जिसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का नाम इतिहासकारों ने दिया। As we will see, rulers who also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. जब ये नए राजवंश आपस में लड़ते थे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो वो एक दूसरे के मंदिरों पर भी आक्रमण करते थे। One of the best known of such rulers is Sultan Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. Sultan Mahmud was also interested in finding more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Baruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as Kitabul Hind, remains the important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. नए राजवंशी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी भी आक्रमण करते थे। उदाहरण के लिए गजनी, महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान के शासक थे, जिन्होंने मध्य एशिया, ईरान, उत्तर पश्चिमी जो भाग है भारत का, उस पर आक्रमण किया। और महमूद ऑफ गजनी, जैसा कि नाम है, गजनी से थे, अफगानिस्तान से थे, और वो तकरीबन हर वर्ष मंदिरों पर आक्रमण करते थे। उदाहरण के लिए सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में, उस पर आक्रमण किया और वहां से वो धन संपदा लेके जाते थे, और उस धन संपदा को गजनी जो उसकी राजधानी थी उसको सजाने में लगाते थे। इतना ही नहीं, जो सुल्तान महमूद गजनी थे, वो अपने साथ स्कॉलर भी रखते थे। उदाहरण के लिए अलबरूनी, जिसको उन्होंने इस काम के लिए नियुक्त किया
कि वो किताबुल हिंद एक अरेबिक वर्क तैयार करें जिसमें वो जिन जिन क्षेत्रों को उसने जीता है उसके बारे में वो लिखें। के लिए किताबुल हिंद जो अल-बरूनी ने लिखी अरेबिक भाषा में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के निर्देश से वो भारत के बारे में बताती है। अदर किंग्स also engaged in warfare included the Chahmanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western Uttar Pradesh. The best known Chahmana ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Gori, but lost to him the very next year in 1192 in the Battle of Tarai. ऐसे केवल सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने ही आक्रमण नहीं किया, इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद गोरी जो भी अफगानिस्तान से थे उसने भी आक्रमण किया और उसका आमना सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को हराया, लेकिन उससे अगले वर्ष वो महमूद गोरी से तराई की लड़ाई में हार जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो नए राजवंश थे जिनमें चौहान भी थे, वो जिनका साम्राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था, उसका विस्तार वो और ज्यादा करना चाहते थे। आपस में वो भी या विदेशी आक्रमणकारी से वो उनका युद्ध होता था। के लिए चौहान शासकों का आमना सामना चालुक्यों से और गढ़वाल से भी हुआ। हमें जो याद करना है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है सुल्तान, जो एक अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक या राजा। क्लास में हम चोलाज के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जानेंगे। थैंक्स।